Thank you, Alexa. Got it. Recording in progress. Fine. Okay. A very good morning to everyone. Good afternoon, and also good evening. Be it whatever time you're watching, just make sure you're up to date. It doesn't matter at what time of the day you're watching it, but the thing is, you should be up to date. Fine. Okay. Chalo, let's start quickly. See, we are still, or we will remain in current electricity for many more days to come. This is the seventh episode. This is the seventh episode. But I think there is small confusion with you all that though this is seventh episode, but this is actually the ninth class on electricity. Can you get it? Did you get it? Because when in the first episode, first episode, we had two parts, and the second episode had two parts. इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गया है. There is no more synchronization. Fine, but that is all irrelevant. What we'll study today is we'll talk about specific resistance and resistivity. Both are same thing, and factors affecting resistivity or specific resistance. Specific resistance and resistivity are the same thing. Okay, fine. Chalo, let's move to the next slide. I think I should just turn the video off. It will be much better. अच्छा व्यू दिखता है मेरे को वहां से. Fine. Okay. Now, see, this question was given to your homework. What was said? A car bulb is connected to 2 volt, 12-volt battery, which draws a current of 2 ampere when glowing. Fine. What they have said? They have said that given what is given, आपके पास एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस V is 12 volt, whereas it draws a current of how much? Current of how much? 2 ampere. It draws a current of 2 ampere. The question asks is, what is the resistance of the filament of the bulb? कौन सा बड़ा बात है, निकाल लो resistance. The Ohm's law क्या बोलता है? Ohm's law says that V is equals to IR. That means IR is equals to V. That means R is equals to V by I. R क्या होता है? V by I. Now just put the values. V is how much? 12. R is 2. I is 2. That is 6. And the SI unit of resistance is ohm. Fine. Fine. Done. Answer. Now they have asked a question. Will the resistance be more or same or less when the bulb is not glowing? This is the resistance when the bulb is glowing. This is the resistance when the bulb is glowing. Now, when the bulb is not glowing, what will happen? This is the resistance when the bulb is glowing. Now, if the bulb is not glowing, so obviously when not glowing, what will happen? अगर ग्लो नहीं कर रहा है, इन अदर वर्ड्स उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है. हीटिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द टेम्परेचर इज less, and if the temperature is less, we know that the resistance will also be less because temperature is directly proportional to resistance. So they have said the resistance will be less when the bulb is not glowing. Fine. कर चुके थे लोग? Good. This question also you can do it, just practice. The relation between potential difference and current in a conductor is stated in the form of a law. Is stated in the form of a law. Name the law. What is the name of the law? आपको बस law का नाम बताना. You don't have to state the law. You just have to name the law. Name is Ohm's law. बस नहीं लिखना है. Statement नहीं पूछा है, बस बोला नाम बताओ. नाम. Name the law. Okay. What does the slope of VI graph for a conductor represent? अगर आपके पास ये VI ग्राफ है, VI ग्राफ, ये कंडक्टर है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप क्या होता है? याद है? स्लोप रिप्रेजेंट्स
डायरेक्टली बोल दे v बाई आई, y बाई आई। स्लोप मतलब होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। y के अलोंग पोटेंशियल है, i के अलोंग करंट है, मतलब i v बाई आई। सो स्लोप रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। फॉर द मेकिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स व्हाट वी विल यूज कंडक्टर्स। एंड कंडक्टर्स में हम लोग पढ़े हैं बहुत सारा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, बट among these silver is very expensive, so at best we can use copper or aluminium, any one you can write. Fine, fine, बस हो गया, और क्या चाहिए? This we have done. This question also, it was given a homework, means the below graph shows the variation of v versus I for same conductors, at two different temperature. Choose the correct option. Choose the correct option. क्या T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, या फिर the sufficient in data sufficient is in data, data is insufficient, और both the temperatures are equal. सबसे पहला बात तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है आपको, at two different temperature. That means this option is obviously ruled out. Now let's see. This is VI graph, and we know that for VI graph, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप m रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग को देख के लग रहा है कि कंडक्टर B का जो एंगल ये थीटा B है, और ये कंडक्टर A के लिए जो एंगल बना हुआ है थीटा A इज मोर देन थीटा B। अगर एंगल ज्यादा है दैट मींस इंक्लिनेशन ज्यादा है, दैट मींस स्लोप ऑफ A इज मोर देन स्लोप ऑफ B। अगर स्लोप ज्यादा है, पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर? रेजिस्टेंस। दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ A इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। एंड वी आल्सो नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ A इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ B। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा, A और B तो है नहीं, A का हो गया 1, A को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, B को 2 से। दैट मींस T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अरे इजी है, कुछ नहीं इसमें। अब यहाँ पे आते हैं, यहां से हम लोग आज का टॉपिक शुरू होगा। बोला है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। What are the factors on which the resistance of conductor depends? This we had discussed in the previous class, and the factors were: number one, length of the wire, and the resistance is directly proportional to the length of the wire. Area of cross section of wire, and the resistance is inversely proportional to area of cross section of wire. And it also depends on the nature of wire and the temperature of the wire. These are the four factors on which the resistance of a wire depends. Okay? This we had discussed in great detail. Now I'll tell you something new. So please try to understand. Now we'll introduce the new topic. Look over here. We have seen that, but now see, if we see, resistance depends on the length, on the area of cross section, and the nature of the wire material, and the temperature. But suppose what we do is, let's take a given material. हम लोग मटेरियल फिक्स कर दे रहे हैं। सपोज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कॉपर फॉर अ गिवन मटेरियल। मतलब कि हम मटेरियल एक सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लेके काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर सिल्वर, या फिर लेड, एनी गिवन वन सब्सटेंस। नाउ एट अ गिवन टेम्परेचर, क्या किया हमने? मटेरियल फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। द मोमेंट वी फिक्स द मटेरियल,
ये वाला फैक्टर रूल्ड आउट हो गया, एंड द मोमेंट वी फिक्स द टेम्परेचर, दिस फैक्टर इज ऑल्सो रूल्ड आउट. The moment we fix the material and the moment we fix the temperature, these two conditions are ruled out. Now the resistance will not depend, we cannot consider these two factors. So in this case, only these two factors will dominate. That is, the resistance is directly proportional to L, resistance is inversely proportional to cross sectional area. अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो हम बोल सकते हैं resistance is directly proportional to L by A. Now again, whenever we replace the proportionality sign with equals to sign, हम लोग को एक कांस्टेंट मिलता है L by A, and this constant is given a name called specific resistance, specific resistance or resistivity. क्लियर है? इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, रो से ऐसे लिखते हैं इसको, मतलब उल्टा पी, पी को थोड़ा कर्व्ड स्टाइल में लिखते हैं. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, इज इट क्लियर, दिस मच इज क्लियर. तो यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट, आई विल रिमूव दिस, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इस जगह नहीं बचा मेरे पास, धुत. एक सेकंड रुक जाओ, मिटा दो इसको, मेरे को बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा यहाँ पे. एक सेकंड ना, बस रुक जाओ भैया, रुक जाओ, सबर कर लो, सबर करो भैया, थोड़ा थोड़ा टाइम दो. हाँ, ये हो गया. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, तो कैन आई से डायरेक्टली, अगर ये कांस्टेंट मेरा रो हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए, और ये जो रो है इसको कहा गया है रेजिस्टिविटी, एंड दिस इज, कैन आई से रेजिस्टिविटी, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल, कहाँ लिखा जाए, देखो, फॉर अ गिवन मटेरियल एंड एट अ गिवन टेम्परेचर, द मटेरियल इज फिक्स्ड कांस्टेंट, टेम्परेचर इज आल्सो फिक्स्ड. तो यहां से हम बोल सकते हैं रो इज इक्वल टू, इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, बस इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं. तो रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल्स टू आर, एंड दिस रो, अच्छा बाय द वे, रो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल. ये बात आपको याद होना चाहिए, ये बात याद होना चाहिए, हम लोग करके दिखाएं आपको कि रो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल. फॉर, अगर कॉपर है तो कॉपर के लिए कांस्टेंट रहेगा, हर एक कॉपर के लिए कांस्टेंट है. दैट मींस रो, रो इज इंडिपेंडेंट, independent of the shape and size of material, shape and size of material. Fine. ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं इसको, रो विल बिकम आर इंटू एल, सॉरी आर इंटू, ये ए ऊपर जाएगा, ये एल नीचे आएगा, तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी. ठीक है, इज इट फाइन? ओके, सो कैन आई से इफ L is equals to 1, that is unity, that is unity, unit, and A is also equals to 1, that is unit. अगर अगर ये इस इक्वेशन में अगर L का वैल्यू 1 हो जाए और A का वैल्यू 1 हो जाए, कैन वी से विच इंप्लाइज रो विल बी इक्वल्स टू R. So can I say the specific resistance of a material is, the resistance is equal to the resistance of a wire of that material of unit length
एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला जा रहा है आपको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन किया जाए तो ऐसे कर सकते हो आप। बात समझ में आया? सुन लो फिर से क्या बोल रहा हूं, कि जैसे आपने एक गिवन मटेरियल का बात किया और गिवन टेम्परेचर का बात किया, आपका मटेरियल फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया। इस सिचुएशन में द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ द रेजिस्टेंस विल ओनली डिपेंड ऑन द length and area of the conductor. Now if we combine these two, resistance will be inversely proportional to L by A. That is, if we replace the proportionality sign with equals to sign, so this will become some constant into L by A, and this constant over here is given a symbol rho L by A, and this constant over here, क्या बोले यहाँ पर, this constant which is rho is called resistivity. Resistivity or specific resistance. Specific resistance. And you can see this is constant. Constant for given material. For given material. And is independent of shape and size. Shape and size. ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ओके। मतलब कि, अच्छा सुन लो एक बार और, सुन लो अच्छे से। ये दोनों लाइन का मतलब ये है कि मान लो आपके पास ये एक कॉपर वायर है, ये भी एक आ, ये भी एक कॉपर है, वायर का शेप कॉपर है, इस शेप में ये भी एक कॉपर है, ये भी एक कॉपर मटेरियल है। ऑल आर कॉपर मटेरियल, ऑल आर कॉपर मटेरियल, ऑल आर कॉपर मटेरियल, ऑल आर कॉपर मटेरियल। सो इन दिस केस इन चारों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इन चारों का रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, बट resistivity will be same. But resistivity of all the four will be same. Why? Because all are copper, 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 copper. बात समझ में आया? फाइन। ये बोलना चाहते, ये दोनों लाइन का मतलब ये बोलना चाहते हैं हम लोग। फाइन फाइन, चलो बढ़िया। नाउ आई हैव टू इरेज दिस क्विकली बिकॉज आई हैव टू यूज इट फॉर सम अदर पर्पस। जस्ट अ मिनट, आराम से करते, आराम से करो, हड़बड़ी कुछ नहीं है। सुन लो पहले, शांति से सुनो बात को। So from this equation we can also say, over here I can write rho L by A is equals to R। हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, लेफ्ट राइट को उल्टा पुल्टा कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं रो इज इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का रिलेशन। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 1 यूनिट and if area is also equals to 1 यूनिट, सो इन दैट केस अगर a का वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में, अगर a का वैल्यू 1 हो जाए, l का वैल्यू 1 हो जाए, तो कैन वी नॉट से रो विल बी इक्वल्स टू r। तो यहां से क्या समझ में आया हम लोग को? यहां से समझ में ये आया कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द is equal to the resistance of a wire of that material of unit length and unit area of cross section। बात समझ में आया? of unit length and unit area of cross section। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया 1 यूनिट है, जिसका ये लेंथ 1 यूनिट है,
उस सिचुएशन में इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को कहा गया है रेजिस्टिविटी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। ठीक है, ओके डन। अब फाइनली एक और छोटा सा बात है जो खत्म कर दिया, यूनिट। तो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का आया फॉर्मूला आर इंटू ए बाई एल। सो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल करेगा तो ऊपर आएगा एक मीटर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। फाइन, आंसर खत्म, और कुछ नहीं करेंगे हम, बस सेफ। सुन लो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत हो गया, बात खत्म, बहुत बकवास कर लो, अब खत्म कर चैप्टर। डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एंड स्टेट इट्स यूनिट। ठीक है, तो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी जो बाहर लिखे थे वही चीज करना है। एंड यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। फाइन, देखो ये रहा आपका आंसर, यहाँ भी यहाँ पर है, अभी पढ़े सब चीज, कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज एन ओमिक रेजिस्टर? व्हाट इज एन ओमिक रेजिस्टर? ये पढ़ चुके हैं हम लोग। द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर। द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर। फाइन। टू कॉपर वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ। ये क्या है? कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, ये पढ़ चुके हैं लोग बहुत बार। बट वन इज थिकर एंड देन द अदर वन। क्या बोला है? आपके पास दो वायर्स है सेम लेंथ का, but problem is one is thicker than the other. This is thinner one and this is thicker one. Both have the same length. तो बोला है which will have more resistance, which will have more resistance। देखो भैया, we know अगर लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो द थिन, मतलब स्मॉल एरिया wire, small area wire will have more resistance, will have more resistance। समझ में आया? क्योंकि थिक मतलब मोटा, मोटा मतलब एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो थिन वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एंड नंबर बी सेड विच वायर विल हैव मोर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विच इन दोनों वायर में से किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? देखो ये भी कॉपर से बना हुआ है, ये भी कॉपर से बना हुआ है, and the moment the material is same, both will have same specific resistance, both will have same specific resistance। बात समझ में आया? इजी। प्रैक्टिस को ऐसे देखो, जो भी क्वेश्चंस वी आर प्रैक्टिसिंग दीज हैव कम इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। बस बकवास नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर। एक सेकंड, वहां पर होगा, क्या हुआ? तुम इसलिए फोन किया था क्या? उसलिए फोन किया? अच्छा फाइन, सॉरी। हाँ, ओके फाइन, वेयर वर वी? आई हैड सम, नो, देखो ये रहा सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द वे यू विल रिप्रेजेंट योर आंसर्स आल्सो। ओके, नाउ वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ द एपिसोड। व्हाट वी आर सेइंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। देखो भैया, सीधा बात है, रेजिस्टेंस चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता था: लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ नेचर ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। नाउ द मोमेंट वी, रेजिस्टिविटी मतलब
we are talking about resistivity मतलब we are talking about same material. Resistive means we are talking about same material. That means it becomes independent of shape and size. Resistivity is independent of shape and size. जैसे ये शेप और साइज का इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कौन सा दो फैक्टर्स एलिमिनेट हो गया? दैट मींस लेंथ एंड एरिया इज एलिमिनेटेड. तो बचा क्या? टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल. सो resistivity will depend on the nature of the material of the substance, just like resistance. Different substance will have different concentration of free electron, different देखो भैया, rho is r into a by l. So can we not say resistivity is directly proportional to resistance? अगर resistance बढ़ेगा तो resistivity भी बढ़ेगा, simple as that. So different substance will have different concentration of free electron, hence resistivity of a conductor depends on the nature of the material of the conductor. Fine. अगर free electrons ज्यादा होगा, if the number of free electrons is more, current will be more, resistance will be less, therefore resistivity will also be less. If the number of free electrons, this is called conductor, these are conductors. But if the number of free electrons is less, the current will be less, resistance will be more, and resistivity will be also be more. These are called insulators. Fine. So this we had already discussed. Okay. Now the another factor is the temperature. Why? Because as the temperature increases, the random motion of the electrons increases, so the number of collisions also increases, so the resistance increases, as a result of which resistivity also increases. So we see that for conductors, resistivity increases with increase in temperature. For conductors, resistivity increases with increase in temperature. Fine. Fine. But apart from this, this is important. This is important. सुन लो क्या बोल रहे हैं हम. What we are trying to say over here is the variation of resistivity or resistance with temperature for different substances. अगर हम लोग कंडक्टर का बात करते हैं, क्या इसका? कंडक्टर्स. There are materials or substance, these are substances for which as you increase the temperature, resistance increases. Here if I increase the temperature, resistance increases. Resistance increases means resistivity increases. So the graph is somewhat like this. ठीक है? मतलब कुछ कुछ सब्सटेंस, अच्छा ऐसे याद रखो, ऐसे समझो, कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं. रिमूव ऑल दिस, कैंसिल. इतना जल्दी समय बीत कैसे जाता है, समझ में नहीं आता मुझे. अभी तो शुरू किए थे. सुनो सुनो बात सुनो, खत्म ही करते इसको. हटा यार बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है ऐसे करने से. जल्दी से टाइम आता है बीच में, तो if the time gap comes in between, it's very disturbing. Okay, fine. कुछ there are different types of substances. There are different types of substances. कुछ substances ऐसे होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करता है. कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे. फाइन. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर, resistivity also decreases. Means over here the resistivity is directly proportional to temperature.
Over here, resistivity is inversely proportional to temperature. एंड कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी अनचेंज्ड रहता है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज भी करते हो तभी भी रेजिस्टिविटी अनचेंज्ड रहता है, इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ओ ऐसा ग्राफ तो बना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा बनेगा। फाइन, व्हाट आई एम सेइंग इज कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, उसको कहा गया है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाता है, इसको कहा गया है सेमी कंडक्टर्स। प्लीज डोंट कंफ्यूज विथ सुपर कंडक्टर्स एंड ऑल। सेमी 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 सेमी। एंड कुछ सब्सटेंसेस ऐसा, अच्छा इसका एग्जांपल क्या देते हैं हम लोग? एग्जांपल देते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सेमी कंडक्टर एग्जांपल होता है जर्मीनियम, जर्मीनियम एंड सिलिकॉन। And there are some substances, if you change the temperature resistivity remains unchanged। इसका नाम नहीं है कुछ, इसको दिया गया है, इसका सब्सटेंस का नाम है कॉन्स्टैंटिन, कॉन्स्टैंटिन और मैंगनीन, मैंगनीन। बस हो गया, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है? ओके फाइन, हटाओ इसको, इसको हटाओ, ये नहीं चाहिए। What happens to the resistivity of semiconductor? क्या? Semiconductor when the temperature increases। हम लोग पढ़े अभी, for semiconductor resistivity is inversely proportional to temperature। So if I increase the temperature, resistivity decreases। बस हो गया, खत्म। Resistivity decreases with increase in temperature। ये आया था 2015 में। ओके फाइन, next, what are superconductors? Now please don't confuse yourself between semiconductors, that's why I'm doing this video। Semiconductors and superconductors, these are two different things, these are two completely different things। Superconductors are conductors which shows zero resistance at very low temperature, but semiconductor is completely different thing। Fine, name a substance whose resistance decreases with increase in temperature, resistance decreases with increase in temperature, this is semiconductor, semiconductor। And what are superconductors? They are conductors, they are conductors which shows zero resistance, zero, almost zero resistance at very low temperature। Fine, बहुत हो गया राव, अरे लंबा किस समझने दो। This is the answer given over here, please go through it। A substance has nearly zero resistance at temperature 1 Kelvin। What is such a substance called? अरे भैया कितनी बार बोला जाए, सेमीकंडक्टर की सुपरकंडक्टर, क्या होगा आंसर? बोलते हो सेमीकंडक्टर की सुपरकंडक्टर हैज जीरो रेजिस्टेंस, सुपरकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। स्टेट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द, ये सब चीज आता है आप लोग को, बस खत्म करना और कुछ नहीं कराएंगे। मुझे पता है लंबा हो गया पर चलता है भैया, क्या किया जाए बोलो। इसको हटा दो, इसको हटा दो, हे भगवान ये बाकी रह गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हो गया रो, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट होता है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल है नीचे ऊपर जाएगा तो पर ओम,
पर मीटर। बात समझ में आया और कुछ नहीं। बस हो गया। आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर है। ऐसा हो गया ना, तुम लोग गाली देगा मेरे को। फाइन, वी स्टॉप ओवर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। गुड मॉर्निंग भी हो गया, गुड इवनिंग भी हो, गुड आफ्टरनून भी हो गया, गुड इवनिंग भी हो गया एंड गुड नाइट भी हो गया। चलो।